So we were studying about the two systems of election. So we had already studied the FPTP system, that is first past the post, that is a simple election in which the candidate getting the highest votes, he is declared winner. Now the second system, that was proportional representation. It has two variations. One variation, the first variation, that applies to small countries like you can say Netherlands or some other country, okay, where we studied Israel, okay. So there the entire country, because it is a small country, so the entire country itself is considered one constituency. Okay, there is only one constituency, and there the people vote on party line, means they vote for particular party. So the parties, according to their share of votes, they are allotted seats in the national parliament. So that is the first type of proportional representation for small countries. The second type of proportional representation used in large countries. Now there, since the country is large, it is divided into constituencies. But these constituencies, they are multi-member constituencies. Means every constituency will have more than one member. Okay. So each constituency, now the different parties that are contesting elections, the candidates vote for the party, and the party are allotted seats in that constituency in proportion to their votes. So suppose a constituency has 10 seats. So each party will be allotted some seats from those 10 seats according to their share of votes. Suppose a party gets 20% votes. So that means it will get 1/5 seat. That means 10 total 10 seats are there, so it will get 2 seats. Suppose some party they get 40% vote. So they will get 40% seat of 10, that is 4 seats. So this way, from each constituency, according to the share of votes, the parties are allocated the seats in that constituency. Now in India, we had adopted a somewhat modified form of the proportional representation system only in the indirect elections. In the indirect elections. Now, if you consider the elections in India, the general election, that is elections to the parliament, that is Lok Sabha, and election to the assembly, Vidhan Sabha, these are direct elections. These are direct elections because people vote directly for the candidates. Okay. So the general elections, that is the elections to Lok Sabha and Vidhan Sabha, they are direct elections. Which are the indirect elections? The indirect elections are elections to the Rajya Sabha and election to the Vidhan Parishad, Legislative Council in the states, and the election of the President and Vice President. Okay. Now here, first we will consider the election to the Rajya Sabha. Election to the Rajya Sabha. How people are elected to actually, elected to the Rajya Sabha.
Now what is, first we will understand what is Rajya Sabha. Now Rajya Sabha, see, in our political structure, our parliamentary structure, we adopted the system which was prevailing in the Britain, bicameral legislature. Bicameral means having two houses. Cameral word means house. Bicameral means two houses. Unicameral means one house. So we adopted the bicameral parliamentary system similar to United Kingdom. So we had two houses. Like in Britain, there was two houses. One was called Upper House or House of Lords, and other was called Lower House or House of Representatives. Only we will not go into much detail, only this much, that there are two houses. Okay, so similarly in India also we adopted two houses. Now one was House of Representatives, which consists of people who are elected directly by the people. Okay, one is called the House of Representatives or Lok Sabha, which consists of the members directly elected by the people, जिनको लोग डायरेक्टली वोट करके चुन के लाते हैं, तो उनसे जो बनी हुई सभा हुई उसको हमने लोकसभा कहा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा. और दूसरी जो सभा है, द अदर हाउस, वी कॉल्ड इट काउंसिल ऑफ स्टेट्स. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, because we are a federal country, so even at the union government, which has the responsibility for governing entire country, there must be some representation of the states. So for the representation of states at the union level, in the parliament we created a house that was representative from the states. We called it the Council of States. That is Rajya Sabha, राज्यों की सभा है. तो one house consists of members directly elected by people for the union legislature, that is parliament, and the other house, it consists of representatives from the respective states, so that if some law is made at the union level, that law is made by the people's representatives as well as the state's representatives. Understand? क्योंकि हमने देश की जिम्मेदारी दे दी संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट को, लेकिन ये फेडरल स्ट्रक्चर था जहां राज्यों को भी शक्तियां थी. तो अब सोचिए कि अगर डायरेक्टली खाली हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव से बना देते पार्लियामेंट को, तो वो तो जो मन में आता वो कानून बना देते, फिर वो राज्यों की क्यों सुनेंगे. तो इसलिए ताकि जो कोई भी ऐसा कानून बनाया जाए यूनियन लेवल पर, उसमें राज्यों का भी पक्ष सुनाया जाए, राज्यों का भी उसमें दखल हो, इसके लिए पार्लियामेंट का एक हाउस बनाया गया जो कि राज्यों की सभा बनाई गई, जिसमें राज्यों से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. हर राज्य के लिए फिक्स है. यस, अंडरस्टूड. बिहार का कितना फिक्स हाँ, है? वी विल कम टू दैट, फर्स्ट अंडरस्टैंड. सो द सेकेंड हाउस, दैट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्य सभा, it has representatives from the states. Okay, understand this? So the parliament, it has two houses. One is House of Representatives. They are the representatives directly chosen by the people, directly elected by the people. And the other house, it consists of representatives from the states.
Now we will understand how these representatives are elected. Now in the Lok Sabha, you know, there is direct election. People vote according to their constituency. They vote for the particular party or the candidate. But in Rajya Sabha, how are the representatives elected from the state? So that we will understand. That system is a modified form of proportional representation. Now, each state, according to its population, has been given the share of seats in Rajya Sabha. What is the total strength of Rajya Sabha? 250. Okay, the maximum, the total strength of the Rajya Sabha is 250. Now, in those 250 seats, according to the share of population of each state, it has been allocated the number of seats in the Rajya Sabha or Council of States. Okay, and where is that given? The share of seats, forgotten. What is the second schedule? भूल गए कॉन्स्टिट्यूशन में. क्या आप लोग तुरंत भूल जाते हैं. नहीं, सेकंड में सर, फोर्थ शेड्यूल. What is the fourth schedule? Allocation of seats in the Council of States. Okay, first schedule is the territory, name and territory of union, the different areas, territories of states. Second schedule is provisions regarding president and this. Third is the oath and affirmation. सेकेंड में सैलरी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं. फोर्थ इज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. 10 है ना, 0 कहाँ है? 10. Yes. So the fourth schedule, it contains the state-wise number of seats allocated to that state in the Rajya Sabha according to the population, and it is adjusted after each census. Okay, so that is why it is changed. So currently you can see that for Bihar there are 16 seats. See, they substituted by Bihar Organization Act 2000. पहले 22 था. बिहार के बटने के पहले जब बिहार झारखंड बट गया तो वो जो है वहाँ 16 हो गया और 6 चले गए झारखंड में. ठीक है, अभी ये 2026 तक के लिए ये फिक्स कर दिया गया था और 26 के बाद ये फिर से जो है ये चेंज होगा. नहीं, पहले जो है ये 50 इयर्स के लिए फिक्स कर दिया गया था. ठीक है, 73-5 के आसपास फिक्स किया गया था अगले 50 साल के लिए. दैट मीन्स 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया था. 2026 के बाद इसको हाँ फिर से एडजस्ट, अब वो जो आगे पार्लियामेंट तय करेगी कितने साल के लिए. So here we can see in the fourth schedule that it is given the different states and accordingly their number of seats in the Council of States.
Now see here today itself I got through a news. See, सब चीज का करंट में आ रहा है. देखिए, द तमिलनाडु government, what it is saying. CM Stalin urges TN people to have more children after delimitation concerns. The Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. Stalin, MK Stalin, he has urged people to have more children. आग्रह कर किया. Yes, citing concerns over loss of parliamentary seat due to impending delimitation process. क्योंकि मैंने आपको बताया कि 26 के बाद सीटें एडजस्ट की जाएंगी फिर से अकॉर्डिंग टू द न्यू सेंसर. एंड तमिलनाडु इट हैज सक्सेसफुली implemented the population control measures. So it has population. So they are saying that we could lose 7 seats in parliament because of lesser population. पॉपुलेशन के बेस पे जैसे वो 10 लाख पे कंस्टिट्यूएंसी फिक्स होता है उसी तरह से टोटल सीट्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स. यस, यहाँ पे क्या सिस्टम है, जैसे बिहार में भी 16 सीट है, ये भी पॉपुलेशन के आधार यस, यस, पॉपुलेशन के आधार पर तो है. कितना पॉपुलेशन पे है, कितना पॉपुलेशन. अच्छा, तो 73 में फिक्स किया गया. वो तो देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं 10 लाख के पॉपुलेशन पे बनती हैं. अब नेचुरल है कि जब पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूएंसी फैल जाएगी. जब फैल जाएगी तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कम हो जाएगा ना. एरिया तो उतना ही है, पॉपुलेशन कम हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंसी और ज्यादा एरिया में हो जाएगा. नेचुरल है, ज्यादा 10 लाख लेने के लिए तो 10 तो नेचुरल है कि सीट कम जाएगा ना. एक तरह से आप डायरेक्टली देखो तो लोकसभा में भी कम हो जाएगा और राज्यसभा में भी कम हो जाएगा. दोनों में हो जाएगा. ठीक है ना. तो वही देखिए यहाँ पर है कि ये तो मतलब कि ये जो न्यूज़ हाँ, if delimitation is carried solely on the basis of population, Tamil Nadu stands to lose 8 parliamentary seats. मतलब कि पॉपुलेशन पे रोक किया हुआ है. हाँ, so this will, देखिए क्या लिखा है, इसलिए बोले ये सब पढ़िए समझिए. This will significantly weaken our representation in parliament. CM Stalin noted that in the past people were advised to take their time before having children. But given the current scenario, he now urges them to act immediately. पहले कहते थे कि हाँ भाई रुकिए बच्चे करने से पहले, लेकिन अब कह रहे कि भाई करिए बच्चे जो है. ठीक है. जो सब ये फिल्मी होता है, 2 बच्चे से ज़्यादा तो करता नहीं है. He framed the issue as more than just a matter of numbers, calling it a fundamental question of the state's rights and influence at the national level. तो जब ही मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में स्टेट का क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या उसका इन्फ्लुएंस है, तो उसी के लिए एक तो राज्यसभा में जो है रखा गया है, वहां से डायरेक्टली चुन के आते हैं, वो तो अलग है ही. तो इस साल मतलब अगला साल सीट बहुत बढ़ेगा पॉपुलेशन के आधार पर देखा जाए तो. अब जो होगा चेंजेस होंगे. दैट इज कॉल्ड डिलिमिटेशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिलिमिटेशन. ओके, so try to understand it. This is news is happening in many states. Even the Hindus, they are some organizations like RSS and all, they are saying that you should have more children. तो अभी दिमाग खुल रहा है 5 साल पहले से नारा लगा. Because the population is, some community their population is increasing. अब जो भी है. Anyway, so now see, we will understand how the PR system works in Rajya Sabha election. See, a third variation of PR, that means the PR system as applied in India, the single transferable vote system is followed for Rajya Sabha elections. We call it single transferable vote system. Means single vote by every person. Whoever is voting, he has a single vote.
but that is transferable vote system. That means the vote can be transferred. यहाँ याद रखिए, जो हमारा जनरल इलेक्शन है यानी डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, वहां सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट होता है। जैसे मैंने वोट दिया, आपने वोट दिया, वो वोट जिसके लिए दिया उसी को हमेशा रहेगा, उसको इधर उधर कुछ नहीं होगा। जिस कैंडिडेट के लिए आपने वोट दे दिया उसी के लिए होगा। लेकिन यहां जो है राज्यसभा के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, उसका अलग होता है। दैट इज कॉल्ड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी वोट यहां ट्रांसफर होते हैं। आप जिस कैंडिडेट को वोट देंगे उससे हो सकता है वोट ट्रांसफर हो जाए दूसरे को। ये बात समझ में आ रही इतना? नाउ वी विल अंडरस्टैंड। सी, एवरी स्टेट हैज अ स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। हर राज्य का एक अपना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसका फिक्स्ड कोटा है राज्यसभा में कि इतनी सीटें उस स्टेट से आएंगी। नाउ the members are elected by the respective state legislative assemblies. तो राज्यसभा में उस राज्य से कौन कौन मेंबर आएंगे ये कौन चुनते हैं? ये वहां की विधानसभा चुनती है। विधानसभा जैसे यहाँ का विधान, ठीक है। तो इसको ये जो लोकसभा राज्यसभा से कोई प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल। ये जो लिखा जाता है लोकसभा राज्यसभा ये सब जानते हैं। तो चूंकि हिंदी का प्रचार करना था, मैंने बोला ना कि हिंदी, चूंकि भाई वो भी तो है, अंग्रेजी से विरोध भी तो है, लोग इसको अंग्रेजों की भाषा समझते हैं। अंग्रेजी का भाषा तो पूरा दुनिया में हिंदी का प्रचार करना था, इसलिए लोकसभा राज्यसभा को ज्यादा पॉपुलर किया गया। नहीं तो है हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। ओके, तो इन एवरी स्टेट द सीट्स इन द राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। द मेंबर्स ऑफ दैट स्टेट असेंबली दे चूज the members for Rajya Sabha. Okay, now the voters are MLAs in that state. The voters are MLAs in that state. अब राज्यसभा के मेंबर के लिए वोटर कौन होते हैं? वहां के जो एमएलए होते हैं, एमएलए वोट करते हैं, यहाँ से वोटिंग होता है उसके बाद। हाँ, नाउ तो कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ, यस। और रिजर्व सीट जो रहता है जैसे फेमस पीपल सबका, उसका कितना रहता है? नॉमिनेटेड सीट्स होते हैं, वो तो अलग है, वो तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते कितने हैं। होते हैं? 10 कितना? जैसे सचिन शायद 12 था, अभी घटाया है उसको, शायद 10 कर दिया है। अमिताभ बच्चन भी जा सकता है, मान लीजिए 10 कर दिया शायद। 10 कर दिया। वो कोई भी फील्ड हो सकता है ना, Yes. ऐसा नहीं है कि लिटरेचर से चाहे स्पोर्ट्स से। Now, every voter is required to rank candidates according to his or her preference. देखिए क्या होता है इसमें, वोटिंग कैसे होता है कि जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसके लिए सभी लोग अपना प्रेफरेंस यहाँ पर जताते हैं। यहाँ वोटिंग ऐसे नहीं होता है कि उसको हमको वोट देना है। जैसे मैंने कहा कि डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है, जनरल इलेक्शन, उसमें क्या है, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हम किसके लिए वोट दे रहे हैं, हमें वो पसंद है, हमको उसको ठप्पा लगा देते हैं, उसके लिए बटन दबा देते हैं। बट इन राज्यसभा हमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होता है, नाम देना होता है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हमें रैंक करना होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस किसके लिए है, सेकंड प्रेफरेंस पर कौन है, थर्ड प्रेफरेंस कौन है, इस तरह से हम सबको रैंक देते हैं। समझ गए? हर एमएलए जो वोट करता है वो सभी कैंडिडेट्स को एक रैंक करता है कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस किसके लिए है,
सेकंड प्रेफरेंस किसके लिए है, थर्ड प्रेफरेंस किसके लिए। ये समझ में आया यहाँ तक। हाँ, यहाँ सबके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है, 3 प्रेफरेंस दिया जाता है। 3 और 4 वो आपका मन पर है। जैसे आपके लिए आपसे सर्विस का प्रेफरेंस मांगा ना, हाँ। अब आपके मर्जी पर है कि आप एक को दीजिए चाहे सबको दीजिए। अच्छा। वैसे ही वहां है कि आपको प्रेफरेंस देना है। ओके, अब क्या होता है कि वोटिंग हो गई, सबने अपना अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैंडिडेट्स के लिए दे दिया। नाउ टू बी डिक्लेयर्ड अ विनर, a candidate must secure a minimum quota of votes which is determined by formula। तो जीतने के लिए एक फॉर्मूला से मिनिमम वोट्स इतना मिलना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, टोटल वोट्स बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स +1 ये फॉर्मूला है। जैसे कि देखिए, फॉर एग्जांपल इफ 4 राज्यसभा मेंबर्स हैव टू बी इलेक्टेड बाय 200 MLAs इन राजस्थान। अगर राजस्थान से मान लीजिए 4 जो है मेंबर्स को चुनना है, तो केवल एमएलए ही वोट करते हैं, अभी बताया। नहीं, एमएलए ही खड़ा हो सकते हैं। नहीं, कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन वोटिंग करेगा। हाँ, जो खड़ा होगा उसके लिए वोटिंग एमएलए करेगा। जैसे 200 सीट है, केवल हाँ, एमएलए 200 एमएलए हाँ, का प्रेफरेंस। तो जैसे हमने राजस्थान का एक केस हम एक ले रहे हैं कि मान लीजिए राजस्थान में 200 एमएलए और वहां से हमें 4 लोगों को चुनना है, तो द विनर वुड रिक्वायर 200 by 4 + 1, दैट मीन्स 200 by 5 कितना हो गया 40। 200 by 4 + 1 क्या हुआ, नीचे +1 जो हो गया वो खुद का है। यहाँ पे +1 जो है वो फॉर्मूला है, वो +1 छोड़िए क्या है। अच्छा ठीक। हाँ, टोटल वोट्स जो है, टोटल वोट्स टोटल कितने हैं 200 डिवाइडेड बाय कितने कैंडिडेट्स चुने जाने हैं 4 + 1 यानी 5। 200 by 5 कितना हुआ 40, 40 + 1 यानी कि मिनिमम 41 वोट्स अगर मिल जा रहे हैं किसी कैंडिडेट को तो वो जीता हुआ डिक्लेयर हो जाएगा। यहां तक समझे कि मिनिमम उसको 41 वोट्स चाहिए जीतने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए वोट्स कैसे काउंट होता है। व्हेन द वोट्स आर काउंटेड, it is done on the basis of first preference secured by each candidate, of which the candidate has secured the first preference vote। अब इसमें कैसे होता है कि सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस सबका काउंट किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कितने लोगों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस कहा है, ठीक है, काउंट हो जाएगा। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होने में डायरेक्टली किसी को 41 वोट्स मिल गए तो वो विनर डिक्लेयर्ड हो जाएगा। तो जिस को मान लीजिए हो गया तो वो जीत गए, ठीक है। मान लीजिए किसी को नहीं हुआ 41 वोट्स, किसी को भी 41 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं कहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो सबसे पीछे है फर्स्ट प्रेफरेंस में, लास्ट कैंडिडेट जो है उसके वोट्स जो हैं सब में बट जाएंगे। और कैसे बटेंगे देखिए, इफ आफ्टर द काउंटिंग ऑफ ऑल फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स required number of candidates fail to fulfill the quota, the candidate who secured the lowest votes of first preference is eliminated and his her votes are transferred to those who are mentioned as second preference on those ballot papers। यानी कि यहाँ पे जो 4 है, 4 में से जो सबसे लास्ट में जो रहेगा हाँ प्रेफरेंस में, तो हाँ, उसी का ये तीनों पे बटेगा। हाँ, उसके अब उस देखिए बता रहे हैं उसमें क्या होगा, होगा जो लास्ट यानी चौथा जो कैंडिडेट है, हाँ, चौथा का उसके सारे बैलेट पेपर चेक किए जाएंगे। तो उसको तो फर्स्ट दिया है जो,
उसमें जो सेकंड जो प्रेफरेंस था उसको वो वाला वोट चला जाएगा, सेकेंड समझे? उसका सारा उसका वोट खोला जाएगा, जहां जिन लोगों ने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था उनका जो सेकंड प्रेफरेंस था वो वोट उसके लिए चला जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस की तरह। सेकेंड प्रेफरेंस वाला वोट फर्स्ट के पास चला जाएगा। तो मतलब जैसे मान लीजिए कि ए, बी, सी और डी ये 4 कैंडिडेट हैं, ठीक है? अब किसी को मान लीजिए प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस जो है कोई भी 41 वोट्स नहीं पा पाया, ठीक है? अब डी को जो है मान लीजिए इसको मिले थे, तो डी फर्स्ट प्रेफरेंस था यहाँ, इसको मान लीजिए 10 वोट मिले थे, डी 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 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट मान प्रेफरेंस लीजिए। में डी को 10 वोट हाँ ठीक है ठीक है। इसमें मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंस कोई दिया था ए को, कोई बी को, कोई ए को, कोई सी को, कोई ए को, कोई बी को, कोई सी को, कोई ए को, सेकंड प्रेफरेंस। तो ये वाला अब यहाँ जो सेकंड प्रेफरेंस था डी के वोट्स में, ये इसको चला जाएगा, 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 ये इसको चला जाएगा। इसके फर्स्ट प्रेफरेंस में ये काउंट हो जाएगा, समझ गए? अब देखा जाएगा इन सब का जो 41 हो गए होंगे या उससे पार हो गए होंगे वो जीते हुए डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर अभी भी नहीं कोई जीता है तो फिर अब क्या होगा, अब सी एलिमिनेट हो जाएगा, जो भी थर्ड मतलब अब इसके बाद जो लास्ट है उसके साथ यही प्रक्रिया होगा। वो जो फर्स्ट जहां होगा उसमें जो सेकंड है उनको अभी में ही होगा फाइनल। तो नहीं, अभी तो हम थोड़े जान रहे हैं कि सी ही लास्ट है, मतलब जो भी लास्ट है अगर वैसा हुआ हाँ, तो इस तरह से वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ गए। तो हमको मिनिमम यहाँ 41 वोट्स हमको चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर, और ये जब तक नहीं होगा तब तक वोट्स ट्रांसफर होते रहेंगे, और इस तरह से उतने लोग जितने हमको चुनने हैं वो चुन लिए जाएंगे। इसी तरह से ट्रांसफर किया जाएगा। हाँ। लास्ट वाला का लास्ट में फिर भी नहीं हुआ तो सेकेंड लास्ट, इसी तरह कर करके आखिर में फाइनल कर जाएगा। तो ये डी को दिया गया है, फिर फर्स्ट प्रेफरेंस में 10 को वोट आया था, ठीक है। डी को आया था 10 वोट, लेकिन सेकेंड प्रेफरेंस में जो सेकेंड 10 का पहले से किया गया, उसके बाद से जो जो आया उस पे सेकेंड पे मान लीजिए कि इसको 38 मिला था, अब इसको 1 2 3 और 4 इसको हो गया 42, ये जीत गया। तो वो तो क्लियर हो गया, समझ गए ना? इस तरह से ये वोट्स जो हैं, जो लीस्ट कैंडिडेट होता है, जो सबसे पीछे होता है, उसके वोट ट्रांसफर हो जाते हैं सेकंड ऑप्शन वालों को। तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफरेबल वोट। तो डी को दिया है 10 कैंडिडेट, तो शुरुआत में दिया 10 कैंडिडेट, यहाँ पे इस एग्जांपल के तौर पे 10 कैंडिडेट दिया, तो 10 का इस पे काउंट होगा डी का। हाँ देखिए समझिए, वो हम यहाँ 4 ही लिए हैं कैंडिडेट, मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट हो, 4 लोग को हमें चुनना है। तो 4 लोग को चुनने पर हमने निकाला कि हर कैंडिडेट को मतलब जीतने के लिए यहाँ 200/4 + 1 दैट इज 200/5 40 एंड 40 + 1 दैट इज 41 वोट्स चाहिए किसी को भी जीतने के लिए। 41 मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए।
अब हम सबके फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट करेंगे, कितने फर्स्ट प्रेफरेंस मिले हैं। अब यहाँ जो लोग 41 या उससे आगे बढ़ गए होंगे वो जीते हुए हो जाएंगे। लेकिन जब डाउन लेकिन तो मान लीजिए कि 2 लोगों को मिल गया, लेकिन बाकी कोई नहीं है, 2 लोग तो जीत गए, हमें चुनने हैं 4, 2 और लोगों को चुनना है। और अब 2 के बाद किसी को भी 41 नहीं मिला, तो अब हम क्या करें कि बाकी बचे लोग में जो सबसे पीछे है फर्स्ट प्रेफरेंस, उसका वोट, हर वोट जो है जो सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा उसको ट्रांसफर हो जाएगा एज फर्स्ट प्रेफरेंस, और फिर उसको ऐड किया जाएगा। वहां अगर कोई अभी 41 हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से एक और को हटा दिया जाएगा, उसका भी सारा वोट सेकंड वाले को ऐड हो जाएगा। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमें 2 और कैंडिडेट न जीत जाए। 4 कैंडिडेट हमें लेने हैं, 4 कैंडिडेट इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दैट इज यूज्ड इन द राज्यसभा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक जितने हमें कैंडिडेट्स जो हैं चुनने हैं उतने चुन नहीं लिए जाते, ठीक है। नाउ तो ये हो गया हमारा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का राज्यसभा में एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो हमने देख लिया। नाउ यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम। व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी सिस्टम। तो हमने देखा, ऑलरेडी डिस्कस किया एफपीटीपी सिस्टम को कि इट इज अ वेरी सिंपल सिस्टम but it is also having some demerits. Now, why did India adopt the FPTP system? The answer is not very difficult to guess. तो ये सोचना कि क्यों इसको ऐसा अडॉप्ट किया, ये सोचना बड़ा मुश्किल नहीं है। If you have carefully read the box explaining Rajya Sabha elections, you would notice that it is a complicated system which may work well in a small country, but it would be difficult to work in a subcontinental country like India. तो पीआर सिस्टम जो है वो छोटे मोटे देश के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया जैसे बड़े देश जो कि एक कॉन्टिनेंट के लगभग साइज में बराबर हो जाता है, ऐसे देश में ये काम करना बड़ा मुश्किल है। पीआर सिस्टम छोटा ही देश के लिए है। द रीजन फॉर, अच्छा नहीं, एक और इसमें है कि द रीजन फॉर पॉपुलैरिटी एंड सक्सेस ऑफ एपीटीपी सिस्टम इज इट्स सिंप्लिसिटी। बहुत सिंपल है। द एंटायर इलेक्शन सिस्टम इज एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड इवन फॉर कॉमन वोटर्स who may have no specialized knowledge about politics and elections. ये किसी भी के लिए समझना बड़ा आसान है, चाहे उसको पॉलिटिक्स की समझ हो चाहे नहीं। हाँ भाई, उसको सीधे पता है हमको किसको वोट देना है। हाँ, देयर इज ऑल्सो अ क्लियर चॉइस प्रेजेंटेड टू द वोटर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, और वोटर्स के सामने भी उनको साफ साफ पता होता है कि हमको किस व्यक्ति के लिए वोट देना है, कौन व्यक्ति अवेलेबल है, और उसके बारे में उसे पता होता है कि भाई इनका चरित्र कैसा है, कैसे आदमी है, कैसे काम करते हैं। उसको बाकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, उसको बस जो कैंडिडेट है उसके बारे में पता होना चाहिए। वोटर्स हैव टू सिंपली एंडोर्स अ कैंडिडेट और अ पार्टी व्हाइल वोटिंग। वोट करते समय हर वोटर को खाली एक पार्टी या कैंडिडेट को चुनना होता है कि हाँ भाई ये पार्टी उसे पसंद है, हाँ ये पार्टी उसे पसंद है, और या जो है ये कैंडिडेट उसे पसंद है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एक्चुअल पॉलिटिक्स, voters may give greater importance to party or to the candidate or balance the two. तो अब वहाँ अगर उसको
पॉलिटिक्स की समझ है तो उसको समझते हुए वोटर जो है हो सकता है वो पार्टी को प्रेफरेंस दे या हो सकता है कैंडिडेट को प्रेफरेंस दे। जैसा आप देखते हैं मोदी को इतना ज़्यादा लोग पसंद कर लिया, ऐसा चढ़ गया इसका कि सब लोग मोदी के नाम पर वोट कर दिए, कैंडिडेट को कोई प्रेफरेंस नहीं, कैंडिडेट कौन है नहीं है, कोई खड़ा हो जाए बीजेपी से उसको वोट दे दिया। जैसे आम आदमी पार्टी को भी ऐसे वोट मिला था। वहां जो है एक पार्टी के नाम पर वोट हुआ था कि भाई केजरीवाल की पार्टी है या नरेंद्र मोदी की पार्टी है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कैंडिडेट पर वोटिंग होता है कि हाँ भाई ये खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है, किसको वोट दें। ठीक है ना, तो ये पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। पॉलिटिक्स पे नहीं, अज्ञान आदमी पे डिपेंड करता है। हाँ, द FPTP system offers voters a choice not simply between parties but specific candidates। तो FPTP सिस्टम में क्या है कि पार्टीज में भी हमें चॉइस मिलता है और कैंडिडेट में भी चॉइस मिल जाता है। हम ये भी सोच के दे सकते हैं कि भाई किस पार्टी को वोट दें, मोटे तौर पे कौन सी पार्टी ठीक ठाक रहती है, या हम कैंडिडेट के भी कि भाई हमारे एरिया से कौन कैंडिडेट खड़ा है उसके अनुसार भी वोटिंग हो सकती है। यहाँ पे भी वही है, मुख्यमंत्री का चेहरा देखते रहता है। In other electoral systems, especially PR systems, voters are often asked to choose a party and representatives are elected on the basis of party lists। PR सिस्टम में क्या है, हमें सीधा सीधा पार्टी को चुनना होता है कि किस पार्टी के लिए हम वोट दे रहे हैं, और फिर पार्टी के हिसाब से उसके लिस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स को वहां इलेक्ट कर लिया जाता है। एज अ रिजल्ट there is no one representative who represents and is responsible for one locality। तो पीआर सिस्टम में क्या होता है कि चूंकि एक एरिया से कई लोगों को चुना जाता है तो वहां कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है कि किस एरिया के लिए कौन जिम्मेदार है। जबकि एफपीटीपी सिस्टम में क्या है, आदमी को पता है कि हमारे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एमएलए कौन है, एमपी कौन है, तो कुछ गलत होगा तो उनको डाले जाए, उनकी शिकायत किया जाएगा। और जो चुना जा रहा है वो भी पता है कि उस एरिया में अगर नहीं काम होगा तो हमारे सिर पे सीधे गाज गिरेगी कि भाई आप ही एमएलए हैं, आप एमपी हैं, काहे नहीं काम करवाए, या लोग आप ही के पास आएगा कि सर हालत खराब है। तो इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड सिस्टम लाइक एफपीटीपी द वोटर्स नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव इज एंड कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल। तो एफपीटीपी में ये फायदा है कि इसमें आपको पता होता है कि कौन कैंडिडेट है जिम्मेदार, उसको हमने चुना है और कुछ भी होगा तो वही जिम्मेदार है। तो ये चाइना का जो सिस्टम है उसको कौन सा सिस्टम कहेंगे? चाइना का जो होता है मतलब वो एफपीटीपी है ना, अब उससे ये है पीआर है क्या? पीआर से चाइना में क्या सिस्टम है, देखिए पहले देखिए पीआर सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पीआर सिस्टम हमेशा वहाँ होता है जहाँ कई पार्टियां होती हैं, वहाँ एक ही पार्टी है, तो पीआर सिस्टम ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात है वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते नहीं है, ये तो पहले जान लीजिए। हाँ बताइए, आपको डायरेक्ट इलेक्शन होते नहीं है, सिर्फ ग्राउंड लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं, जैसे आपके यहाँ पंचायत के इलेक्शन समझ लीजिए, बस वही होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद सब इनडायरेक्ट होते हैं, पब्लिक को खाली इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये चुनेगा, ये इस पोस्ट पर प्रमोट होगा, ये प्रमोट होगा, ये बन गया, ये बन गया, तो उसके बाद उन लोग का हेडेक है। ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, वो सिस्टम को क्या कहेंगे, कुछ अलग से स्पेसिफिक नहीं? देखिए उसको कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन है ही नहीं। इलेक्शन है कहाँ? आप तो खाली एक पंचायत लेवल पर चुन रहे हो, उसके बाद तो आप कहीं चुन ही नहीं रहे हो, तो इलेक्शन कहाँ वहां होता है? मैंने बोला ना कि इलेक्शन जैसा वहां कुछ होता ही नहीं है, वहां खाली इंफॉर्मेशन बस आ जाता है, हाँ ये आज से राष्ट्रपति चुन लिए गए। राष्ट्रपति का पावर है ना, सबका पावर नहीं, प्रथम नागरिक हेड ऑफ स्टेट, वो हेड ऑफ स्टेट तो ठीक है, वो राष्ट्रपति है, वहां प्रेसिडेंट बेस्ड सिस्टम है, लेकिन सबको पावर है। अच्छा, अमेरिका में पीएम का पोस्ट है ना कि नहीं है? अमेरिका में पीएम जैसा कोई पोस्ट नहीं है।
जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ पीएमएम नहीं है। और चाइना में चाइना में भी प्रीमियर कहते हैं, प्रीमियर है, ठीक है, क्योंकि चाइना का सिस्टम बहुत अलग है। देखिए समझिए, चाइना का सिस्टम पूरी दुनिया में अकेला देश है वहीं ऐसा सिस्टम गजब का हाल है वहाँ है, का। ठीक है, एक्सट्रीमली कम्युनिस्ट। तो मतलब और छोटे मोटे एक आध कोई देश होंगे वैसे जो बहुत पॉपुलर नहीं है, तो वो यूनिक सिस्टम है उसका। वो फायदा ही नहीं उसको ठीक समझने है, का। हाँ, तो उसको समझने का कोई मतलब ही नहीं है। उसको पॉलिटिक्स में कुछ लेना भी नहीं है, मतलब एक समझने ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, और उनका अंदर जो होता है बॉडी पोलित ब्यूरो कहते हैं, तो वो जो है वही लोग चुनते हैं अपने आप में। बाहर पब्लिक को, भाई बाहर पब्लिक को कोई राइट्स ही नहीं है वहां पर, तो आप इलेक्शन तो बहुत बाद की बात कर दी, बहुत आगे की बात लड़की कर दी। लोग को चाहे लेडीज लोग को राइट है वोट देने का चाइना में, मतलब वोट देने का मतलब कि ग्राउंड स्तर पर वोट देने का। ग्राउंड स्तर पर अब हम ये नहीं कर सकते हैं भाई, हमने चाइना की पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है, चाइना की इसलिए पढ़े। तो चाइना में जो है देखिए बहुत लिमिटेड राइट्स, बहुत अलग तरह का देश है। कम्युनिज्म को अभी आप नहीं समझे, कम्युनिज्म में जो है वो राइट्स का बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि वहाँ इंडिविजुअल का कोई खास मतलब होता नहीं, वहाँ किसी एक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वहाँ सब कुछ है फॉर कंट्री, फॉर कम्युनिटी, समझ गए। हर नागरिक वहाँ बराबर है, इसलिए नागरिक का कोई मतलब नहीं, एवरीवन इज जस्ट अ सिटीजन ऑफ चाइना, समझ गए। हर कोई गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो जो सबके लिए रूल है, जो सबके लिए है तो वो है, तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। भाई सबको 1 kg राइस मिलेगा या 10 kg राइस मिलेगा महीने में, तो बस वो सबको 10 किलो राइस मिलता है, सब वही खाते हैं। वहाँ का अजीब तरह का सिस्टम है। हर चीज कम्युनिज्म जो है इट इज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम, बट इट इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। आज देखिए, आज पूरी दुनिया को छक्का छुड़ाए हुए हैं, चाहे इकोनॉमी के फील्ड में देखिए, पॉलिटिक्स के कहीं देख लीजिए, आज देख लीजिए कि पूरे दुनिया की इकोनॉमी को चैलेंज कर दिया चाइना ने, और सबसे आगे निकला हुआ है। आज सबका हालत खराब है, देखिए जितने कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, सबके हालत खराब है, और चाइना दम मजे में अपना दम धकाधक चला जा रहा है, इंजन इसका दम फास्ट तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया में इसके सामान बिक रहे हैं। आज देखिए सब चाइना से बनवा रहे हैं सामान, क्योंकि सस्ता और दिनों दिन और आते जा रहा है चाइना का, दिनों दिन वो और अपना बढ़ाता जा रहा है, देख रहा है अपने कैपेबिलिटी को, पहचान रहा है कि मेरी इतनी कैपेसिटी है, दिनों दिन और नए नए चीज़ें जो है अपना वो लॉन्च करते जा रहा है, आते जा रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। क्वालिटी भी सही रहता हाँ, है, डेफिनेटली क्वालिटी डेफिनेटली, तभी दैट तो इज पूरा व्हाई दुनिया एवरी खरीद रहा कंट्री है। इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम देयर। कम प्राइस में बेहतर क्वालिटी दे रहा है, तो सब इसलिए तो सब जगह बेरोजगार लोग हो गए हैं, चाइना वालों को काम पर काम मिले जा रहा है। एक समय जो था चाइना को लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे कि कम्युनिस्ट कंट्री है, ये है वो है, चाइना ने दिखा दिया अपना जो है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, बिकॉज वहाँ जो ऑर्डर पास हो गया वो पूरे देश में जितने करोड़ अरब लोग हैं वो सबको फॉलो करना है। यही ना सही है, तो सर एक प्रकार से सही तो है। यही बता रहे हैं कि उसके अपना एफिशिएंसी भी है, जो ऑर्डर पास हो गया वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। यहाँ देख लीजिए आप, टीचरों को ड्यूटी दिया जा रहा है, टीचर काम करने बेहाल है, कभी कोई किसी टाइम पहुँच रहा है, किसी टाइम पहुँच रहा है। अब ये हो रहा है कि भाई फोटो लेगा आपको, फिर फोटो सिस्टम कर दिया लोग को एग्जाम ड्यूटी में, क्योंकि कोई ऑर्डर पास होगा उसके विरोध करने वाले 10, कोई ये पार्टी है, कोई ये कोई ये यूनियन बनाए हुए, कोई ये टीचर, कोई जिसको मन है, कोई रूल का कोई मतलब है नहीं। वहां ने लिख दिया 9 बजे पहुंचना है, 9 बजे 1 करोड़ लोग अपने पोस्ट पर होंगे, इतना वहां टाइट है। वहां खिलाफ बोलिएगा, बाहर ले आके गोली मार देगा आपको, इतना तो वहां सुनने का है ही नहीं कि खिलाफ बोल रहा है, विरोध कर रहा है, कर रहा है, सीधे गोली मारा जाता है। जिसने जो है ना नुकर किया, थोड़ा इधर उधर किया, जाके मंत्री भी जो है ना कुछ करता है, जाके मंत्री को गोली मार देता है सीधे।
देर इज सच स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, तो वो डिसिप्लिन के लिए ही जाना जाता है देश, और डिसिप्लिन के कारण वो इतने इफिशियंट हैं हर कोई को, क्योंकि मजबूरी है। आज देखिए आप एथलेटिक्स में देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, इतना कम्पीट कर रहा है चाइना का, उसका देख लीजिए डेडिकेशन। चाइनीज के आप एथलीट्स और सब का देख लीजिए, स्पोर्ट्समैन का डेडिकेशन, किस डेडिकेशन से खेलता है। तो दे आर नोन फॉर, इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इतना मेडल्स भी जीतता है देखिए। तो जिस फील्ड में भी चाइना जा रहा है, बिकॉज दे आर डिसिप्लिन। और हमारे यहाँ एक बात कही, एक बाप कहेगा तो उसके 4 बेटे नहीं सुनते हैं बात, एक कहेगा कुछ, दूसरा कहेगा कुछ, तीसरा कहेगा कुछ। दिस इज ए कंट्री ऑफ डिफरेंसेस, खाली यहाँ डिफरेंसेस हैं। 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ दिमाग अलग अलग लगाएंगे। सरकार कुछ बोलेगा, उसका 10 लोग कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, खाली डिफरेंसेस। और वहां क्या, पूरा चाइना एक आवाज में बोलता है। जो ऑर्डर पास हुआ मैंने पास हुआ, सब ब्रिटेन उस सबको फेल किए हुए डिसिप्लिन के मामले में। मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई वॉच अ लॉट ऑफ चाइनीज मूवीज। आई लाइक चाइनीज मूवीज अ लॉट। बहुत अभी भी वहाँ सोसाइटी वैल्यूज ये सब बहुत कुछ प्रिजर्व किया हुआ है। हम लोग तो बर्बाद हो गए, बट स्टिल दे आर वेरी ट्रेडिशनल इन वेरी सेंस, एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन। इसलिए देखिए आज हर जगह चाइना, पहले चाइना में, अब विदेशों में भी चाइना के लोगों का मांग हो रहा है कि भाई चाइनीज लोग को काम पर रखो। चाइना इंडिया, इंडिया को फेल कर दिया चाइना। इंडियंस का बीच में मांग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था इंडियंस लोग को। अब चाइना वालों ने वहाँ, क्योंकि चाइना में इंग्लिश को नहीं ये लोग प्रमोट करते थे, तो इसके कारण चाइना वाले पीछे रह जाते थे इंडियंस से। अब उन्होंने इंग्लिश को ही प्रमोट कर दिया कि इंग्लिश सीखो बढ़िया से, सबको फेल करो। इंडिया को फेल किए हुए चाइना का लोग, तो काम करने में तेज है या इंग्लिश भी सीख ले रहा है सब। तो दे हैव शोन द कम्युनिस्ट सिस्टम, इट हैज इट्स ओन एडवांटेज। हाँ, कुछ मामलों में अगर हम सोचते हैं तो बहुत डिसएडवांटेज है। हम सोचते हैं हम भाई हमको मन है, मैं मन हुआ काम पर गए, नहीं मन हुआ नहीं गए काम पर, मेरा मर्जी। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, जाना है तो जाना। हर चीज़ आप कुछ, आपको नहीं जो है सब गवर्नमेंट जो कहेगी वो करना है। आपका बेटी है, किससे उसके शादी करनी है, वो गवर्नमेंट आपको कहेगा इससे शादी करनी है, इस डेट पर पहुंच जाना, अपना बेटी का शादी कर देना, ये अरेंजमेंट रहेगा, खाना पीना सब सरकार करेगा, आपको कुछ नहीं करना। लड़का भी सरकार ढूंढेगा। हाँ, लड़का सरकार नहीं ढूंढेगा, ठीक है, उतना है कि लड़का चलिए आप अपना तय करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि सारा जो व्यवस्था है वो सरकार करती है, आदमी को भी कोई टेंशन नहीं। इंडिया का लोग तो संभव ही नहीं है उसके बराबर करने का, उस तरह का डिसिप्लिन में नहीं। हाँ, डिसिप्लिन नहीं है वैसा। आएगा अभी तो 100 साल के बाद। यहाँ तो देखिए लेबर इशूज ही इतना ज़्यादा है। अभी भी देखिए, आप तो मैंने कल दिखाया था ना कि लेबर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ये है, ये लोग सब तरह का, सीपीआई वाले अभी देखिए कर रहे हैं, ठीक है। तो लेबर प्रोटेस्ट है, उधर किसान प्रोटेस्ट है, बहुत तरह का चीज़ है, डेमोक्रेसी है। अभी कलकत्ता में हो गया है, स्टूडेंट जो है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर गया हुआ था, कॉलेज में विरोध कर रहा था, बस वो क्या हुआ नहीं, वहाँ गर्मा गर्मी हुआ, गाड़ी चढ़ा दिया 2-4 लोग पर, स्टूडेंट्स पर। हाँ, अब वो लोग नहीं जाने दे रहा होगा या रोक रहा होगा, विरोध प्रदर्शन जुलूस मोर्चा हो रहा होगा। अब उसमें जो है क्या हुआ है वो एग्जैक्टली तो हम नहीं अभी देखे, लेकिन बंगाल में उसके कारण काफ़ी ये हो रहा है, विरोध हो रहा है, 2-4 लोग उसमें इंजर्ड हो गया, स्टूडेंट मतलब बच गया ना, मारा नहीं ना, एडमिट है हाँ हॉस्पिटल में। तो इस तरह का मैंने विरोध प्रदर्शन होते रहेगा कि भाई कोई चीज़ को लेके। अब कुछ लोग जो है टीचर लोग मंत्री के सपोर्ट में जुलूस निकाल रहा है, और बच्चा लोग स्टूडेंट्स के खिलाफ जुलूस निकाल रहा है। देखिए, ये देखिए, टीचर लोग तो मंत्री के फेवर में है, क्योंकि भाई अभी लोग को क्या करेगा, सरकार तनख्वाह देता है। इधर ही लोग जो है विरोध मोर्चा सब जगह जो है निकाले हुए। ममता बनर्जी को पलीता लगाने में लगा हुआ है, क्या मेहनत से बेचारी कर रही है।
So this is anyway. Here you can see like in this cartoon, it is showing at the time of Nehru that opposition is very weak. Hmm? That opposition is very चारों weak. कांग्रेस के हैं। हाँ, these are all the ruling party members. You can see नेहरू जी हैं, पटेल जी हैं, उधर आपके राजेंद्र प्रसाद नहीं, गोविंद वल्लभ पंत हैं वो, और ये जो हैं आपके ये हैं, क्या नाम है, कृपलानी लग रहा है, जो है कृपलानी या कोई है, जगजीवन राम होंगे शायद, नहीं जगजीवन राम भी मोटे थे, दुबला पतला दिखाया है, शास्त्री तो नहीं है, शास्त्री का इतना कद तो नहीं था, खैर जो भी हो। तो एनीवे आइए, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि FPTP सिस्टम हमने अडॉप्ट किया इसलिए क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चुनाव होते हैं, और जो इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, अ वोटर नोज कि which party should he vote for or which candidate should he vote for, and if he has voted for some party or some candidate, he can clearly hold him accountable. He can go to him, he can approach him, and he can hold him accountable for anything happening in the constituency. So that is why for the general election FPTP system is adopted in India. More importantly, अब यही सब आपको याद रखना है जो यहाँ लिखा हुआ है ना, कहीं आपसे पूछा जाए या कभी लिखने के लिए आए तो यही सब वहाँ लॉजिक देना है. More importantly, the makers of our constitution also felt, देखिए ध्यान दीजिए, felt that PR based election may not be suitable for giving a stable government in a parliamentary system. एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम PR सिस्टम अडॉप्ट करते हैं तो उससे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी. We shall study the nature of parliamentary system of executive in the next chapter. Parliamentary system government को हम next chapter में study करेंगे. This system requires that the executive has majority in the legislature. तो parliamentary executive system है कि पार्लियामेंट में से ही कुछ लोग एग्जीक्यूटिव बनते हैं, यानी सरकार बनाते हैं, जिनकी मेजॉरिटी होती है पार्लियामेंट में. उसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम. हमारे यहाँ है कि जो लोग सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं, वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं और उनकी मेजॉरिटी होती है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिर्फ प्रेसिडेंट चुना जाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसके बाद वो अपने लोगों को कहीं से भी चुन सकता है और उनका मतलब वहां के हाउस से कोई लेना देना नहीं होता है. वो किसी को भी, जैसे किसी को बना सकता है, जैसे इलॉन मस्क को कुछ बनाया हुआ है, वैसे ही उनका वहां के पार्लियामेंट से कोई लेना देना नहीं. समझ गए? जबकि हमारे यहाँ क्या है, वो पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं जो कि सरकार में मंत्री बनते हैं. वहां जैसे मंत्री को कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. जितने भी अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ मिनिस्टर्स को कहा जाता है सेक्रेटरी कहा जाता है. तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो मतलब अगर यूनियन लेवल पर जो मिनिस्टर हुए तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जो भी उसका मंत्रालय. वहाँ पे भी स्टेट का डिफिनेशन सेम है, स्टेट हर जगह सेम है जनरल. तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, जैसे हमारे समय, अंग्रेजों के समय जो था तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होता था. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी जो इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल मंत्री होता था, हिंदी में उसको भारत मंत्री लिख देते थे. तो वहाँ जो इंडिया के अफेयर्स के लिए जिम्मेदार होता था जब अंग्रेज शासन यहाँ चलता था, उसको कहा जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. जैसे अमेरिका में है, यहाँ हम डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, वहाँ कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस.
मंत्री को सेक्रेटरी हाँ, ऑफ स्टेट स्टेट का। कहा जाता है। जो हमारे यहाँ जो आईएएस होते हैं उनको सेक्रेटरी कहते हैं, लेकिन वहाँ मंत्री को सेक्रेटरी। समझ गए? यहाँ जैसे हम फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। और जो मिनिस्टर वर्ड यहाँ हम यूज करते हैं, वहाँ मिनिस्टर वर्ड रिलीजियस पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, फादर के लिए यूज करते हैं। वहाँ मिनिस्टर का मतलब होता है पंडित, पुजारी। सेक्रेटरी SECRETARY। समझ गए ये फर्क? तो यहाँ हम मिनिस्टर कहते हैं मंत्री को, वहाँ मिनिस्टर कहते हैं जो चर्च में कोई फादर, प्रीस्ट या जो भी सीनियर पोस्ट पर होता है, चर्च रिलेटेड जो होता है। ब्रिटिश लैंग्वेज है, ब्रिटिश हाँ। लैंग्वेज है। ठीक है, तो मिनिस्टर हर जगह लगभग वो चर्च रिलेटेड पर्सन्स को कहा जाता है। ठीक है, और उधर यूज करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नाउ तो यहाँ हमने देखा कि ये मिनिस्टर मतलब जो सरकार है वही ना मिनिस्टर कि पूरा यहाँ MLA। हाँ हाँ हाँ, दोज इन द गवर्नमेंट, मंत्री उसको ना कहते हैं, वो तो विधायक हुआ। प्राइवेट मेंबर भी जैसे आते हो तो खैर वो सब। हाँ, तो वो लोग सांसद हुए या विधायक हुए। हाँ केवल वही, लेकिन ये जो जिसके पास पोर्टफोलियो है वही मंत्री है, दे तो वही है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हाँ। समझ गए ना, तो इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, जहां एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट का पार्ट होता है। समझ गए? ये वर्ड समझ रहे हैं? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वर्ड आपको अक्सर मिलेगा। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मतलब जहां एग्जीक्यूटिव, दैट मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर, सेक्रेटरी। मिनिस्टर्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ गए? जबकि उधर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो मतलब सो कॉल्ड मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पे तो है दे आर इंडिपेंडेंट। इसीलिए बोले ना, वहां जो है जैसे बोले कि प्रेसिडेंट का चुनाव खाली होता है, प्रेसिडेंट बन गया, अब वो हमको कल को कहेगा आ जाइए भाई, आपको हम यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं, हमको बना देगा। कोई वहाँ के पार्लियामेंट से लेना देना नहीं। मान लीजिए कि वहाँ पे 35 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। हाँ। 35 करोड़ में से किसी को भी बना किसी देगा। को भी बना सकते हैं। कितना अच्छा सिस्टम है, पैरवी वाला सिस्टम। ठीक है, अब पैरवी वाला नहीं तो वहाँ उसकी जिम्मेदारी भी तो होती है, सारी जिम्मेदारी वहाँ प्रेसिडेंट की ही होती है। कुछ भी होता है तो प्रेसिडेंट का ही सिर नोचा जाता है, वो भी तो है। यहाँ तो है कि मोदी कह देंगे हाँ भाई वो मिनिस्टर ने गलती कर दिया, वो मिनिस्टर ने गलती कर दिया, उसको झाड़ ला। वहाँ तो सब झाड़ सुनना है प्रेसिडेंट ही को, क्योंकि आप ही चुने हैं, आपकी पीपल आपको चुना है। पीपल नहीं जानता है कि कौन इलोन मस्क है, कौन किसको वोट दिया, किसको आपने चुना। वो बस जानता है कि हम आपको प्रेसिडेंट चुने थे। सब उसी का माथा नोचता है। इसलिए ये अपने अपने सबकी खूबियां हैं, कमियां हैं। तो इसको समझ गए? देखिए वर्ड एक हुआ प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव और एक हुआ वर्ड, लिख लीजिए, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। वन इज पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, लिख लीजिए, द एग्जीक्यूटिव और मिनिस्टर्स are part of the parliament. मैंने यहाँ भी है कि किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप लेना होता है। तो उसको राज्यसभा में डायरेक्ट भेज देगा। हाँ, जैसे भी करे तो वही करेगा। मतलब he has to be only 6 month period is allowed कि विदाउट मेंबरशिप के 6 महीने किसी को बनाया जा सकता है, उसके बाद उसको मेंबरशिप लेना ही होगा उसका। तो मेंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, फुल स्टॉप। ये तो बहुत बढ़िया पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव।
पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में पीएम वाला सिस्टम होता है। नहीं, कोई भी हो सकता है, यहाँ भी प्रेसिडेंट सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो समझना है ये कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो मतलब लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं, और वहाँ जो है वो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, वो खाली हल्ला करते रहो तुम लोग हाउस में, उससे कोई मतलब नहीं, उसको अपना जो मन है सरकार चलाएगा। जबकि यहाँ क्या है कि वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं और पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही इनका होता है। आपसे सवाल किया जाए कि आप ऐसा क्यों किए, वहाँ सवाल पूछने वाला कोई नहीं, जो सवाल पूछना है जाओ राष्ट्रपति से पूछो, बाकी को कोई मतलब नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव लिखिए कि द एग्जीक्यूटिव is directly appointed by the president and it has no concern with the legislature. ठीक है, देखिए आगे, you will notice that the PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of share of votes. अब PR सिस्टम अगर हम अडॉप्ट करते हैं, मान लीजिए किसी, तो इससे क्लियर मेजॉरिटी नहीं, क्योंकि पार्टियों को तो अपने अपने जितना वोट मिला उसके अकॉर्डिंग उतना सीट मिल गया, तो जरूरी नहीं है ना कि अकेले किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाए। वहां तो फिर है कि आपको मिला जुला के गठबंधन करना पड़ेगा मेजॉरिटी के लिए, तो क्लियर मेजॉरिटी का यहां जरूरी नहीं होता है। द FPTP system generally gives the largest party or coalition some extra bonus seats more than their share of votes would allow. Thus, this system makes it possible for parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the formation of stable government. तो जबकि FPTP सिस्टम में क्या होता है कि परसेंट वोट से ज़्यादा सीटें मिल जाती है और इसके कारण एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करना आसान हो जाता है। फाइनली, द FPTP सिस्टम एनकरेजेस वोटर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू कम टुगेदर टू विन एन इलेक्शन इन अ लोकेलिटी। और FPTP सिस्टम में ये भी होता है कि अलग अलग जो है सामाजिक ग्रुप के वोटर्स भी एक साथ एक लोकेलिटी में चुनाव में वोट दे सकते हैं, किसी कैंडिडेट को मिलजुल के जिता सकते हैं। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, अ PR सिस्टम वुड एनकरेज ईच कम्युनिटी टू फॉर्म इट्स ओन नेशन वाइड पार्टी। तो PR सिस्टम में क्या हो सकता है, PR सिस्टम में जो है कि भाई कोई हो सकता है कि जो भी ये हैं क्या बोलते हैं, मतलब कि जो भी ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ सोशल, हो सकता है वो जो है पूरे देश के स्तर पर मतलब अपना पार्टी बनाने का सोच लें, क्योंकि पूरे देश के स्तर पर इसमें प्रोपोर्शनल सीटें मिलती हैं, तो हो सकता है ना कि कोई भी जो जाति है वो कहेगा कि हम ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एक अपना संगठन बना रहे हैं और सभी इस जाति के लोग हम ही को वोट करेंगे पूरे देश में, तो इस तरह से समाज के बट जाने का भी खतरा है। है ना, कि भाई चूंकि वो पूरे देश में उसका जितने वोट होंगे उतने सीट होंगे,
तो यहाँ चूंकि हमारे जैसे डाइवर्स कंट्री में इससे समाज के टूटने का भी खतरा है. दिस में ऑल्सो हैव बीन एट द बैक ऑफ माइंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. तो ये भी हो सकता है इसलिए हम लोग FPR सिस्टम को फॉलो नहीं किए. The experience of the working of constitution has confirmed the expectation of constitution makers. The FPTP system has proved to be simple and familiar to ordinary voters. It has helped larger parties to win clear majorities at center and state level. कॉन्स्टिट्यूशन इसी तरह से थोड़ी ना लिख दिया The system has also discouraged political parties that get all their votes only from one caste or community. इसी तरह जो मैंने इसके कारण ऐसा हुआ है कि जो भी पार्टी है कोई ऐसा नहीं कर सका है कि किसी एक खास जाति को ही पकड़ के या एक समूह से ही वोट ले. उसको सबसे मिला जुला के वोट लेना पड़ता है. नॉर्मली द वर्किंग ऑफ द FPTP सिस्टम रिजल्ट्स इन अ 2-party सिस्टम. तो FPTP सिस्टम में नॉर्मली जो है कम से कम 2 पार्टियां जरूर रहती हैं. दिस मीन्स दैट देर आर 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर पावर and power is often shared by these 2 parties alternately. तो FPTP सिस्टम में जनरली है कि जनरली 2 पार्टियां होती हैं अपोजिंग. तो कभी ये पावर में आती हैं कभी वो पावर में आती हैं अल्टरनेटली. It is difficult for new parties or the third party to enter the competition and share power. In this respect, the experience of FPTP in India is slightly different. After independence, though we adopted FPTP system, there emerged a one-party dominance, and along with it, there existed many smaller parties. After 1989, India is witnessing the functioning of multi-party coalitions. पहले एक ज़्यादातर एक ही पार्टी का रूल होता था, that was the Congress party. Now India is witnessing functioning of multi-party. अब जो है गठबंधन की राजनीति 89 के बाद से शुरू हो गई देश में. At the same time, gradually in many states, a 2-party competition is emerging. But the distinguishing feature of India's party system is that the rise of coalitions has made it possible for new and smaller parties to enter into electoral competition in spite of FPTP system. तो FPTP सिस्टम होने के बावजूद अब छोटी पार्टियां भी उभर के आ रही है. जैसे बिहार में हमारे देखिए एक पार्टी जीतने वाले भी सरकार में शामिल हैं. एक कैंडिडेट जीतने वाले. VIP पार्टी. हाँ, VIP पार्टी के बारे में नहीं जानते हैं. आप कुछ करंट जान ही नहीं रहे जी. नहीं, पॉलिटिक्स का ये सब नहीं जान रहे हैं. तो करंट पढ़ा करिए ना. VIP पार्टी से सहनी लोग हैं, वो लोग का मुकेश सहनी ये सब जो मंत्री बना था VIP से. और हाँ, और एक कोई थी लेडीज थी, लड़की थी कोई, वो प्रचार बहुत कर रही थी. वो तो आप जान रहे हैं लेडीज के बारे में. तो VIP पार्टी जो है बेसिकली जो है ये मल्लाहों की, वो शायद हार गई थी वो लड़की थी. तो एक जीता था, यही मुकेश सहनी जीता था. तो उसको एक होने के बावजूद वो मतलब समझिए एक वोट का इतना इंपॉर्टेंस था, एक सीट का, कि उसके कारण उसको सरकार में मंत्री का पद दिया. ऐसा दोनों में टाई हो गया था RJD और नीतीश कुमार JDU में. तो वहाँ पर हो गया था कि भाई मुकेश सहनी जिधर सपोर्ट करेगा. तो मूर्ख था, उसको बोलना चाहिए था कि हमको CM का कुर्सी. नहीं, तो ये नौबत ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए. तो मूर्ख, उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं. तब साउथ के मूवी में हम देखे हैं. ये टाई हो गया था, एक वो सीट ले आया था, बोला कि हम नहीं महेश बाबू का नहीं, दूसरा कोई का, तमिलनाडु का ही प्रॉपर मूवी. अच्छा. हाँ, हम भी देखे, अभी हमको याद नहीं आ रहा. हम देखे हैं, बोलता है कि CM बनाओ चाहिए. देखे हम भी. खैर नहीं आइए. तो ये हम देख रहे हैं कि FPTP सिस्टम जनरली जो कि मतलब 2 पार्टियों को इनकरेज करता है और छोटी और नई पार्टियों को जल्दी मौका नहीं मिल पाता है. लेकिन उसके बावजूद अब जो है हमारे देश की राजनीति में राज्य स्तर पर जो है वो बहुत सारी छोटी पार्टियां भी आ रही हैं और उनका भी अच्छा. FPTP सिस्टम का ये एक डिमेरिट है. हाँ, डिमेरिट है. बहुत डिमेरिट भी, तो डिमेरिट भी है. यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ भी आ ही जाता है. तो ये नेचर में है ही वो चीज़. वही कहानी है.
चलिए इसको कल ले लेंगे। हाँ, ये एक्चुअली रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स में चूंकि अभी हमारा आ भी रहा है आगे ना, अभी डिलिमिटेशन होने वाला है अगले साल, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना इसको ठीक हिंदी से। में क्या कहेंगे डिलिमिटेशन को? डिलिमिटेशन को लिमिट हिंदी में और डिलिमिट क्या कहते हैं, अब देखिए इसको डिक्शनरी में। नहीं बता देता हूँ। परिसीमन, परिसीमन आयोग का ना है। तो हिंदी में हम कहाँ से समझेंगे? परिसीमन आयोग नाम है, देखिए आगे नहीं, परिसीमन आयोग का है। उतना लिख तो लीजिए, हिंदी- लिख लीजिए, लिख अब लीजिए। उतना तो हिंदी कहाँ हो? डिलिमिटेशन लिख लीजिए, आने वाला है टॉपिक और अगले साल तो होने ही वाला है। डिलिमिटेशन कमीशन या लिमिटेड मतलब परिसीमन, प र में हर्षई, स में दीर्घई, सीमन, परिसीमन। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ जैसे कि लिमिट। टू सेट द लिमिट, हम्म, बाउंड्री तय करना, कहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंसी का बाउंड्री होगा। तो जैसे देखिए अगर पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो छोटा हो जाएगा, वो तो समझ पॉपुलेशन गए, वो तो घटेगा समझ तो गए। फैल जाएगा, ज़्यादा वो तो एरिया वो कवर समझ करना गए। होगा। तो वही कहाँ तक बाउंड्री होगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वही तय करता लिमिट का है। मतलब ही है सीमा। डिलिमिट का मतलब होता है टू टू क्रिएट बाउंड्री, To उसका set, बाउंड्री तय करना to set the limit ऑफ of कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे Set the- नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नॉर्मल इंग्लिश में हाँ, टू सेट द लिमिट्स, बस। यही मतलब होता है। से हम लोग मंडे को जा रहे हैं क्लास करके